Good morning, students. We are discussing atomic model for hydrogen explained by Bohr scientist. Bohr's atomic model for a hydrogen. Last class we discussed about orbits or shells, energy at the orbit, and energy difference between two orbitals. When electron will jump from lower energy level to higher energy level, then energy will be required. When the electron jump from higher energy level to lower energy level, then energy will be released, hence emission and absorption. And now we are going to discuss another one, and last topic also discussing radius of the atom. Radius of atom, Rn, radius of shell, Rn is equals to E naught into E naught value n square into E naught n square into A naught. A naught is equals to 52.9 picometers. So ये सब last class में discuss किया. Next another one most important point is the most important property associated with the electron is energy of its stationary state. Stationary state का energy यहाँ पे ये radius को indicate करता है. Radius of orbit and energy of orbit is given by the principle En is equals to E means energy of shell minus RH into 1 upon n square. This is the value to find the energy of shell. So ये energy of shell here given by only hydrogen atom, because here one, the one means first atom is hydrogen, atomic number 1. N means shell energy is equals to minus RH. RH is Rydberg constant. Rydberg constant. This is Rydberg constant. N is number of shell. So this principle is used to only for hydrogen atom, right? Hydrogen atom का N shell का energy minus RH into 1 upon n square. Here RH is known as Rydberg constant. The Rydberg constant value is RH is equals to 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. RH is equals to 2.18 into 10 raised to 18 joules. 2.18 into 10 raised to minus 18 joules. Minus 18 joules. This is the value of Rydberg constant. In case hydrogen having only one shell, ground state, here n is equals to 1, then here En means n is equals to 1 means first shell energy E1 is equals to minus 2.18 into 10 raised to minus 18, 1 upon 1 square. That means E1 is equals to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule energy for the first shell. First shell energy is minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. First shell का energy इतना है. In case n is equals to 2, then E2 is equals to minus 2.18 into, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंसिपल में माइनस है, ये माइनस क्यों लिया मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा. तो माइनस 2.18 into 10 raised to minus 18 into 1 upon n square means 2 square, that means 4. तो इसको सॉल्व करो, आपको E2 is equals to the value is minus 0.545, minus 0.545 into 10 raised to minus 18 joules. 10 raised to minus 18 joules. This is the value for second shell, and this is the value for first shell. Means Rydberg constant means the value is equal to first shell. Here
sign is indicated with negative sign. First shell energy, second shell energy, third shell energy. आपको चाहिए तो वहाँ पे third shell. But this principle is used only for the hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट शेल्स होगा क्योंकि लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस विल बी emitted from the hydrogen. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सेवंथ शेल, एथ शेल एक्सेट्रा जितना भी है यहाँ पे this one is n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 6, n is equals to 7 इंफिनिटी तक आपको इंफिनिटी शेल तक जितने जो भी शेल हाइड्रोजन का दिस वन इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम को एटम के अंदर जितना भी शेल्स है कोई भी शेल का एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए ये प्रिंसिपल यूज करते हैं. दिस इज यूज्ड फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम शेल एनर्जीज. ओके एंड नेक्स्ट वन here here we are going to discuss sign negative sign. नेगेटिव साइन के लिए यहाँ पे डिस्कशन करना है. फर्स्ट वन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द influence of the nucleus, the energy is taken as zero. The electron is in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number n is equals to infinity, and its electron is attracted by when the and is called as ionized hydrogen atom. When the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit n, the energy is emitted and its energy is lowered. That is the reason for the presence of negative sign in equation 2.13. तो ये यहाँ पे 2.13 दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक. यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लिया, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट. एंड stability related to the reference state of zero energy and infinity n is equals to infinity. This point is very important. Why here we take the sign minus? तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो. Here n is equals to 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 6 etc. This one is nucleus. This value, this shell is known as infinity. N is equals to infinity shell or last shell. So infinity means maximum distance from the nucleus. Then that electron does not attract by the nucleus. That's why this electron will be removed from the atom. तो यहाँ पे जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में नहीं रहेगा तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द एटम. दैट मीन्स वहाँ पे n is equals to infinity. infinity शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो हाइड्रोजन आयन होता है, मीन्स H प्लस इंफिनिटी शेल में होगा तो क्लियर. तो उसका एनर्जी मैक्सिमम रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल पर नहीं है तो इंफिनिटी शेल में है तो उसका एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी रहेगा. Correct. Clear. So that's why hydrogen ion will be obtained. When this infinity shell electron will comes under the effect of nucleus. तो infinity shell में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस में आने के लिए क्या करना है, कोई भी शेल पे आना चाहिए. तो infinity shell कौन सा है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल शेल. When this electron jumps from highest energy level to lowest energy level, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा. क्लियर. तो इंफिनिटी शेल में से इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस पे आने के लिए क्या करना है, एनर्जी रिलीज करना है. एनर्जी रिलीज होगा तो यहाँ पे हम लोग साइन क्यों इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट. ये इसलिए रेसिपी में नेगेटिव साइन. हियर this negative sign is indicated with the energy of the electron. When electron is in infinity shell, then it will comes under the influence of nucleus. Then that electron will be release energy. That release energy is indicated with the sign of negative. This is only sign. This sign indicates to
But electron releases energy and comes in the influence of the nucleus, इसलिए यहाँ पे negative sign. And next one, Bohr's theory can also be applied to the ions containing only one electron, similar to that present in hydrogen atom. For example, helium plus lithium plus 2, beryllium plus 3, and so on. The energies of the stationary states associated with these kinds of ions, known as hydrogen-like species, are given in the experiment. Given in the expression. तो clear. तो यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम को ही एप्लीकेबल कर सकते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स हाइड्रोजन में क्या होगा, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम को ही बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल। ओनली वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम कौन सा होता है यहाँ पे, ओनली वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम, आयंस होने दो, एटम्स होने दो, नोट एटम होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा। तो नेक्स्ट ऑल आर द ions only, है ना, ions only here, hydrogen कब भी क्यों हो, तो ये सब डिस्कशन किया। नेक्स्ट हीलियम प्लस 1, lithium plus 2, beryllium plus 3, and so on. So these all ions having only one electron, like hydrogen. हाइड्रोजन में जितना इलेक्ट्रॉन्स है सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स। बट हीलियम प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हाइड्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 2 में से 1, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में 3 में से 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन। Beryllium 4 में से 3, that means 1 electron. These all ions having only 1 electron, like hydrogen. That's why this Bohr atomic model will applicable to like these ions only. And next, the radius of every atom. तो already यहाँ पे clear हो गया, हाइड्रोजन लाइक एटम को ही बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक डिस्कशन किया, रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम ओनली फॉर हाइड्रोजन के डिस्कशन किया, एंड एनर्जी ऑफ द शेल ओनली हाइड्रोजन के डिस्कशन किया। बट रेडियस ऑफ एवरी एटम का डिस्कशन करना है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एवरी एटमिक शेल का डिस्कशन करना मीन्स ये यहाँ तक जो भी डिस्कशन किया ओनली हाइड्रोजन का एप्लीकेबल हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू फाइंड द रेडियस ऑफ डिफरेंट एटम, different shells, and next to find the energy of different atomic different energy levels। means principal quantum number n वैल्यू डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल दिया है। रेडियस ऑफ डिफरेंट एटम्स, एनी एटम radius Rn is equals to nth shell radius is equals to a naught into n square, a naught into n square upon z पिकोमीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस को पिकोमीटर में मेजर कर लें इसलिए यहाँ पे पिकोमीटर्स लिया रेडियस का। ये नॉट हियर, ये नॉट वैल्यू क्या होगा 52.9 पिकोमीटर्स। तो रेडियस ऑफ एन शेल इज इक्वल्स टू ये नॉट मीन्स 52.9 into n square upon z। Here z is equals to atomic number, z is equals to atomic number। तो कोई भी एटम होने दो, फॉर एग्जाम्पल मुझे एटम z एटमिक नंबर 4 होने दो, 4 मीन्स बेरिलियम। फिर एटमिक नंबर 4 एटम का फर्स्ट शेल का एनर्जी सॉरी रेडियस फाइंड करना है, तो n इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ एटम मीन्स बेरिलियम एटम है, बेरिलियम एटम में फर्स्ट शेल रेडियस फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। आर एन इज इक्वल्स टू एन मीन्स यहाँ पे 1, ये 52.9 into n square means 1 square, z means atomic number 4। तो 4 से इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो बेरिलियम में फर्स्ट शेल का।
वही सेम बेरिलियम में सेकंड शेल का चाहिए तो एन को चेंज करो, बेरिलियम में थर्ड फोर्थ, बेरिलियम में चाहिए मुझे कार्बन चाहिए तो 6 कार्बन सेकंड शेल, तो सेम डिफरेंट एटम का। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड to identify the radius of different atom, different orbitals radius को find out करने के लिए use करो। And next one, similarly, energy. Energy also different. Energy also different for the different energy levels. तो different atom को energy level को find out करने के लिए यहाँ पे energy of n shell is equals to minus RH, क्योंकि Rydberg constant है, minus RH into 1 upon minus RH into z square upon n square, sorry, z square upon n square, here this is the joules। तो रेडियस को पिकोमीटर में मेजर करते हैं, एनर्जी को जॉल में मेजर करते हैं, देन ई एन एनर्जी ऑफ एन शेल इज इक्वल्स टू माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में क्या किया, माइनस आर एच वन अपन एन स्क्वायर, मतलब वो that energy is only applicable for the hydrogen atom. Here any atom, any shell energy find out करने के लिए ये प्रिंसिपल को यूज करें। That means En is equals to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 z square upon n square। यहाँ पे z is equals to same atomic number, z is equals to atomic number here। अब कोई भी एटम का एटम एनर्जी शेल का एनर्जी फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल z is equals to atomic number 7, n is equals to 3। atomic number 7 किसका होगा, atomic number 7 is नाइट्रोजन एटम, एंड नाइट्रोजन एटम में थर्ड शेल का एनर्जी चाहिए, तो नाइट्रोजन का थर्ड शेल का एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपको नाइट्रोजन एटम में थर्ड शेल का एनर्जी मिलता है, फाइंड आउट कर सकते। This is the radius energy for different atoms। तो स्टार्टिंग में ओनली और हाइड्रोजन को एप्लीकेबिलिटी है, नेक्स्ट डिफरेंट एटम को एप्लीकेबिलिटी है। एंड नेक्स्ट वन इज explanation of line spectrum of hydrogen। Okay, one thing is that this is nucleus, these are the orbits। तो radius of orbit का फाइंड आउट किया, ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फाइंड आउट किया। नाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल्स है, तो आपको वो हायर क्लासेस में आएगा। यहाँ तक तो इतना इनफ है, रेडियस ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड रेडियस एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स को ये प्रिंसिपल यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ एटम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका प्रिंसिपल अलग है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना है। एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज explanation of line spectrum of hydrogen। Here, line spectrum of hydrogen, ये सब प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, ये सब न्यूमेरिकल में यही पूछेगा। एन शेल का एनर्जी, डिफरेंट एटम एटॉमिक नंबर देगा, और ये एटम में फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल कोई भी शेल का एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। ये सब प्रिंसिपल्स are very very important। Here first one, line spectrum observed in case of hydrogen atom as mentioned in session 2.3 can be explained quantitatively using Bohr's model। Okay, Bohr's model के साथ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। तो कौन सा है 2.3 that means line spectrum, Balmer series, Pachel series, Becker series, series लास्ट क्लास में डिस्कशन किया, वो एक्सप्लेन किया। बट वी नो अकॉर्डिंग टू assumption 2 क्या एक्सप्लेन कर रहा है, assumption 2 मीन्स बोर्स एटॉमिक मॉडल का assumption 2 ये एक्सप्लेन कर रहा है
when the electron jumps from higher energy level to lower energy level, lower energy level to higher energy level. When electron jumps from lower energy level to higher energy level, then energy will be required, मतलब energy absorbed होगा. Next, when electron jumps from higher energy level to lower energy level, then electron will be released, emission होगा. फिर तो यहाँ पे क्या होता है, E1 से लेकर E2 differentials E1 E2 E3, that means यहाँ पे लिखा हूँ positive 1 2 3 4 5 etc. This one is energy shell 1, energy shell 2, energy shell 3, energy shell 4, energy shell 5. यहाँ पे लोअर में आने के लिए एनर्जी रिलीज होगा, हायर में जाने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब. So here the energy change between any two shells, energy change between any two shells, last class में discussion किया, energy change delta E is equals to E2 minus E1. That means final minus initial. Here you write like this. This one is final F. Here I. F means final, I means initial. Here combining equations. तो equation ये फाइनल का भी रहेगा, इनिशियल का भी रहेगा. तो फाइनल का इनिशियल का यहाँ पे ऐड करो, ऐड करेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा. तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई एफ का एनर्जी कितना होगा, माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर. क्लियर, इनिशियल सॉरी एन एफ स्क्वायर होगा क्योंकि ये फाइनल है, तो एन एफ स्क्वायर रहेगा. एंड नेक्स्ट माइनस, इसको जस्ट here minus, sorry minus आगे लिखो, minus RH upon Ni square means इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, फाइनल शेल का ये इनिशियल शेल का सेम डिफरेंस है, राइट. नेक्स्ट डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, तो इसमें से कॉमन क्या निकल सकते हैं, आर एच को कॉमन निकल सकते हैं, आर एच इज इक्वल्स टू, तो आर एच को कॉमन निकलेगा तो वहाँ पे ऊपर क्या होगा, वन होगा, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, आंसर करो माइनस वन अपॉन एन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन आई स्क्वायर. क्लियर. देन डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आर एच इंटू, तो प्लस को इधर लिखो, माइनस को उधर लीजिए, वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एक्स स्क्वायर. So this principle is used to identify the energy difference between any two shells. Any two shell means final initial. यहाँ पे फाइनल का पता होना चाहिए, इनिशियल का पता होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में से कौन सा शेल पे जा रहा है, मतलब सेकंड में से थर्ड पे जंप हो रहा है क्या, थर्ड से सेकंड पे जंप हो रहा है क्या, वहाँ पे फाइनल इनिशियल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स वी कैन फाइंड easily. Next, the frequency associated with the absorption or and emission. तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी तो रेडिएशन फॉर्म में रिलीज होगा, तो रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी एप्लीकेबल करनी है. तो आपको पता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो यहाँ पे एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू एच न्यू होगा, न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपन एच लिखो. Here h is equals to Planck constant, same Rydberg constant, RH is equals to Rydberg constant, ये तो आपको पता है. तो क्लियरली यहाँ पे लिखो डेल्टा E is equals to, जस्ट ऊपर कर रहा हूँ बोर्ड को, डेल्टा E is equals to RH upon H into 1 upon Ni square minus 1 upon Nx square. तो ये वैल्यूज तो अपने को पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी पता है, जस्ट मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा इक्वेशन delta E is equals to, okay, delta E is equals to 2.18 into 10 raised to minus 18, okay, upon 6.626 into 10 raised to minus 31.
ये नेक्स्ट इसको निकालना पड़ेगा मुझे इनटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करें तो ये 30 और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू इज 3.29 इंटू 10⁻15, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा वो माइनस होगा तो 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो ये प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट सॉरी हियर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस रिलेशन विथ एनर्जी डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है ये। नेक्स्ट वन जस्ट चेंज हियर नॉट डेल्टा ई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, क्योंकि मेटा दिया मैंने नहीं देखा, तो न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच, तो ये सब है अपने पास है, डेल्टा ई वैल्यू ये सब है, तो यहाँ पे एच वैल्यू यहाँ पे लिख दिया मैंने। दिस प्रिंसिपल इज फॉर न्यू, तो न्यू होगा तो यहाँ पे रिवर कांस्टेंट वैल्यू एंड टाइम कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो न्यू इज इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, इनिशियल माइनस फाइनल एड्रेस, ये फ्रीक्वेंसी। बेस्ड ऑन दिस वी कैन फाइंड द वेव नंबर आल्सो, वेव नंबर भी ये प्रिंसिपल से फाइंड आउट कर सकते हैं कंटिन्यूअस मैनर। Wave number is indicated with mu bar. The mu bar means mu bar क्या होगा, inverse of the lambda, inverse of the lambda. Then mu bar is equals to 1 upon lambda. Based on this, mu bar is equals to 1 upon lambda. Here C is equals to, ये important है, ये सब ये याद रखने का आपको। C is equals to mu lambda. Here lambda is equals to C upon mu. ओके, ये लैम्डा वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, ये वैल्यू को म्यू बार इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखा हूँ म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 upon lambda means C upon mu, so म्यू बार इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन C। ओके, ये प्रिंसिपल, तो C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू C अपॉन म्यू, तो लैम्डा का जगह पे मीन्स म्यू बार इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ द लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा, म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C अपॉन लैम्डा, तो ये डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा म्यू अपॉन C होगा। म्यू का वैल्यू अपने पास है, ये पूरा म्यू का वैल्यू है, तो C वैल्यू, तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू म्यू बार इज इक्वल्स टू 3.29 into 10⁻15 upon, here C velocity of the light, otherwise speed of the light, speed of light 3 into 10⁻8, 3 into 10⁻8 meter per second, and 1 upon n square minus 1 upon nf square, ये दोनों को डिवाइड करो, म्यू बार इज इक्वल्स टू कितना होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.09677 1.09677 into say 1 upon ni square minus 1 upon nf square. This is the principle used to find different terms of the light. तो ये एनर्जी डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को यूज करके इसमें से देखो डेल्टा ई वैल्यू को फाइंड किया,
न्यू वैल्यू को फाइंड किया, here यहाँ पे लिखा फर्स्ट डेल्टा ई को फाइंड आउट किया, न्यू को फाइंड आउट किया, न्यू बार को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेव नंबर, this one is wave number, frequency, energy difference between any two shells। तो any two shells इसलिए यहाँ पे मैं initial final लिया, तो then I means initial, F means final level। By this principle we can find the energy difference और frequency and wave number। तो ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है, जो माइनस सिंबल है एनर्जी अब्जॉर्प्शन रिलीज को इंडिकेट करते हैं। इन केस एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई वैल्यू इज negative, then energy will be released. In case positive, energy will be absorbed। Here in the case of absorption spectrum होगा तो मैं सर इसको बता रहा हूँ। In the case of absorption spectrum, NF is greater than NI, क्योंकि NF मीन्स फाइनल शेल का एनर्जी मैक्सिमम रहेगी तो ये एनर्जी रिलीज होगा। इन द केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मीन्स अब्जॉर्प्शन कब होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाने के टाइम पे, हायर एनर्जी लेवल पर एनर्जी ज़्यादा रहेगा तभी वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन द केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन भी होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, Ni is greater than Nf, तो एमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा, इनिशियल शेल का एनर्जी लोअर रहेगा, फाइनल शेल का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, फाइनल में से इनिशियल में आएगा तो एनर्जी एमिशन होगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा। तो इन द केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फाइनल का ज़्यादा रहेगा तभी यहाँ पे जो वैल्यू है पॉजिटिव है। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड बोर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। These are the principles used in this lesson, and here some numericals are given 2.10 and 2.11, 10, 11, 12 तक है, 11 तक के two numericals है। These two numericals are discussed, we will discuss tomorrow, and another one limitations of Bohr atomic model also we will discuss next class। Okay, this is information। लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल बाकी है, एंड ये न्यूमेरिकल बेस्ड टू न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये प्रिंसिपल्स को यूज करके टू न्यूमेरिकल से एग्जांपल को सॉल्व करना है। और आपको टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल्स एक बार प्रैक्टिस करना। सेकंड लेसन न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ से है, इसका कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सब अच्छा।